I think है ना ते देवाच्या खाली लावला ठेवलं का ना बाटली उदबत्तीचं विसरलं. Others, please mute yourself. Okay, very good morning, everyone. So nice to see you all here. Most welcome from Sneak Kriya Foundation. I'm Harshali Kharche. I'm the founder of Sneak Kriya Foundation, one of the director. Sneak, we are basically based in Nagpur. Sneak is a special needs integration center. Our motto is to provide conducive environment for children with special needs so as to facilitate their development, education, help them develop their potential to the fullest, and enhance their independence, enable them to become a well-adaptive individual in society. For these reasons, we are coming up with few projects like recreational center, community support center, homeschooling, vocational daycare, and finally residential hub. These facility we are planning to have under one roof. Right now, our motto is to educate the parent and develop their perspective towards the right kind of interventions and treatments. In this, actually, always we are calling professional parents for their journey. बट आज मुझे एक थोड़ा अलग टॉपिक हम यहाँ लेके आए हैं जो आई थिंक एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू नो कि ऑनलाइन थेरेपीज के बारे में, दैट इज टेलीथेरेपी। जहाँ मुझे एक्चुअली काफ़ी मैसेजेस आए कि ऑनलाइन थेरेपीज कैसे काम करती है, ऑनलाइन कैसे होगा, अगर हम कर पाएंगे कि नहीं। तो हमने कुछ इसके लिए कुछ अलग सोचा और कुछ अलग लेकर आए हैं। हमारे साथ आज हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन थेरेपीज लेके काफ़ी सक्सेसफुली डेवलपमेंट में अपने बच्चों पे काम कर रहे हैं। सो today we have different topic, I mean altogether. So wherein we have parents panel discussion who are going to talk about online therapies which are introduced during this COVID time, because इस COVID time पे हमारे ऊपर एकदम से जैसे ये ऑनलाइन थेरेपी आ गया, हम ऑफलाइन जा रहे थे इतने साल भर, लेकिन अभी एकदम ऑनलाइन कैसे होगा, हमारे बच्चे कर पाएंगे कि नहीं, वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं. So we are going to meet such parents who have done this continuous therapy in all this time and had seen wonderful improvement in their children. So we'll begin this with a short brief introduction of everyone. I'll just stop this screen share. Today we have, okay, we will start with Arpana ji. Arpana, you can briefly introduce yourself. Yeah, hi. Good morning, everyone. I am Arpana. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन वर्चुअल सेशन से फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त लास्ट ईयर एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन. मेरे पास मेरा भी एक बेटा है 4.5 ईयर का और जर्नी अभी चालू है. थैंक यू. ओके, थैंक यू. स्वर्णिमा जी, आप इंट्रोड्यूस करेंगे आप ब्रीफली. आप म्यूट पे हैं स्वर्णिमा जी. या हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. मैं अभी से ऑनलाइन. आवाज आ रही है मैम? हाँ, अब आ रही है. आप पीछे जाते हो तो थोड़ा आवाज ये. अच्छा. हाँ, ओके. तो मैं अभी 4 to 5 मंथ से ऑनलाइन ले रही थेरेपी. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जब वो 3 साल का था, आज वो 11 साल का है. तो 3 साल से ही मैंने शुरू कर दिया था. लेकिन मुझे सबसे बड़ा फर्क यही लगता है कि हम डायरेक्ट अपने बच्चे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो हम ऑफलाइन में नहीं हो पा रहे. हम जाके छोड़ दे रहे थे और हम उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑनलाइन थेरेपी है. संक्षिप्त में यही कहूँ कि बहुत ही अमेजिंग, बढ़िया.
थैंक यू सो मच. नाउ आई रिक्वेस्ट सुमन जी, आप अपने को ब्रीफली इंट्रोड्यूस. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम सुमन है और मेरे 2 बच्चे हैं. एल्डर वन इज रचित, ही इज 12 and he is diagnosed as autism spectrum, and I have a daughter also, she is 6. See, this online therapy has given us a power to interact and be with whole family. It has connected the whole family. पहले कैसे होता था, हम लोग फैमिली हैं, जानते हैं, लेकिन बट with this online session we started playing together. Or the bonding between my son and daughter is tremendous. Like, apart from what effect, what positives has come on Rachit, it's an added cherry on the topping. But जो उन लोग का relationship है, इस चीज से बहुत अच्छा हुआ है, जो कि मुझे बहुत like it has never been this good. So I'm really happy with this online session, and if possible, I'll continue in future also. So about our thing, our family. Okay, so I think we will start with you only. If anybody wants to add up, then you three of you can add up in that. What were the aspect of development you could cover during lockdown in therapies? See, there were various aspects. Basically, तो जो मेरे साथ था कि he was going to the therapy center, doing things, but एक वो था कि there's no connect. ठीक है, घर पे आता था और he is on his own world kind of. तो खुद से करने से क्या होता है कि फोन दे दो तो सारा दिन बच्चे बैठे ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग they will give the phone. But हमारा मेजर चैलेंज ये था कि how to connect as a family. We know कि हमारा बच्चा है, हमें हमेशा साथ में रहना है, but how to really gel and come to that level. when मेरी सबसे पहले बात हुई थी सर से, तो उन्होंने वही बोला कि don't think him as a 12-year child, think him as a 2-year kid who need to understand and who need to play. So that play was the missing in our life. We started playing and like things evolved around it. तो मुझे लगता है कि हमारा जो मेजर एस्पेक्ट था कि भाई प्ले नहीं है, हम लोग खेल डायरेक्टली हम लोग जंप कर दिए इस पे कि एजुकेशन करेंगे, स्पेशल एजुकेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इट्स ऑल राइट. बट एक जो बच्चे का जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है प्ले, दैट वाज मिसिंग. And with this online therapy with Saumil sir, we learned a lot of things to like interact and और मतलब रचित के साथ कैसे कनेक्ट होना है, उसके साथ कैसे क्या करना है, वो हम लोगों ने सीखा है. ये हमारा आपके सिबलिंग का भी अच्छा रोल रहा है शायद. बहुत ज्यादा. आप यकीन नहीं करोगे, पहले क्या होता था, ये भाई है, हमें सब कुछ, हमने वी प्लान्ड ओनली सेकंड चाइल्ड बिकॉज वी वांटेड अ सपोर्ट सिस्टम फॉर रचित. बट होता क्या था कि रचित एक अलग आइडेंटिटी है और आन्वी एक अलग आइडेंटिटी है, उन लोग में कोई ये कनेक्शन नहीं है. ठीक है, तो पहले क्या होता था, हम लोग बाहर कहीं जाते थे, दे वर बोथ स्कैर्ड. रचित स्कैर्ड था तितली से, क्योंकि वो शी इज स्मॉल एंड शी इज वॉलेटाइल, वो क्या करेगी रचित को पता नहीं है. और रचित क्या है, बड़ा है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, अनप्रिडिक्टिव है, तो आन्वी उससे डरती थी. बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर, यू वोंट बिलीव, उन लोग का जो दोनों का इंटरेक्शन है इतना अच्छा हो गया अभी कि अब हम लोग पहले हम लोग बाहर जाते थे तो कार में रचित आगे बैठता था और मैं पीछे बैठती थी आन्वी के साथ, बिकॉज दे बोथ वर स्केर्ड ऑफ ईच अदर. अब अभी ये लोग क्या कहते हैं कि मम्मा आप आगे बैठो, मैं भैया के साथ बैठूंगी. सो दे बोथ आर सो कंफर्टेबल विथ ईच अदर कि दे बोथ सिट टुगेदर इन द बैक सीट, आराम से अपने से बैठेंगे, अपने से जाएंगे. सेम विद द प्लेइंग, रीडिंग बुक, लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो पहले आन्वी करना चाहती थी बट शी वाज स्कैर्ड. रचित करना चाहता था बट दे वर स्कैर्ड. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच, एकदम बच्चे की तरह, एकदम छोटे, अलग क्लीन स्लेट से स्टार्ट किया. एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ट्रस्ट, देयर रिलेशनशिप, एंड इट इज लाइक ब्यूटीफुल नाउ. टच वुड, इट्स ब्यूटीफुल. ऑनलाइन सेशन हेल्प किया उसमें भी, नो? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने जब सेशन ओटी सेशन किया है, इसमें सर ने हमको सबसे पहले वही सिखाया कि खेलते कैसे हैं, विच वाज मिसिंग. हम लोग जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले कह रहे कि भाई
इसको काम डाउन करो, एकेडमिक्स करो, ये करो, वो करो. But how to like ask a child to play, that was completely gone. वो था ही नहीं, कभी किसी ने एड्रेस ही नहीं किया. तो हम लोगों ने, सौमिल सर ने पहले वही बोला, जस्ट खेलो उसको, खेल, जब तक तुमको खेलने का आइडिया नहीं आएगा और कुछ चीज में कुछ आइडिया आएगा ही नहीं. एंड यू वोंट बिलीव दैट इज हेल्प. पहले हमने स्टार्ट किया, अभी स्टार्टेड इन अगस्त, समवेयर लाइक 7-8 महीने हुए, ज्यादा भी नहीं हुआ. और हम लोग ने खेलना स्टार्ट किया धीरे धीरे, बलून से, फिर प्ले डॉ से. और सबसे अच्छी बात है कि सौमिल सर का, कि उन्होंने ये किया कि भाई एक घर के अंदर एक रूम का कंफाइन नहीं किया. बोलो, हम लोगों ने बीच पे थेरेपी किया, पार्क में थेरेपी किया, हम लोगों ने बेसमेंट में किया जहाँ पे हम लोग कार क्लीनिंग कर रहे हैं, तो फिर टेरेस पे किया, मतलब जहाँ पे है वहां पे हम लोगों ने थेरेपी किया. एंड वी नो हाउ टू, लाइक वी न्यू कि इस एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करना है. अभी हम लोग ऑफलाइन में जाएंगे तो एक रूम है, रूम में क्या करना है, एक वो डायनामिक नहीं हो पाता है. लेकिन अगर आप बीच पे जाओ तो दैट डायनामिक चेंजेस ऑल टुगेदर, कि कैसे वहां पे खेलना है, क्या करना है. तो वी गॉट टू लर्न फ्रॉम सर की डिफरेंट डिफरेंट डायनेमिक में, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे कैसे खेलना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे इसको, इस चीज को टैप करना है कि ये अपॉर्चुनिटी है भाई, ये अपॉर्चुनिटी को कैसे लेना है. और हम लोग तो जब रचित 1 साल का है तब से हम लोग बीच पे जा रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार हुआ, मैंने सर को बताया भी कि वो गया और उसने मतलब स्विमिंग कर लिया, हम लोगों ने खा लिया सब कुछ. he was playing on his own with the waves on the beach. वेव्स को चेस कर रहा है और रन कर रहा है, चेस कर रहा है, भाग रहा है वो, which is like it has never happened. It has never happened कि he is playing like that. बीच मतलब कि पानी में उधर जाओ, पानी में जंप करो, नहाओ वहां पे और निकलो फिर. that was the only concept we had about the beach. But I saw him playing for the first time with happily. ऐसा नहीं कि भाई कोई फोर्स कर रहा है या कुछ कर रहा है. happily he was playing, he was chasing the waves. So I mean, so wonderful to know that you are really from wonderful. Bangalore. हम लोग को जाना था, बट वी वर सो स्टक विद दैट सीन कि भाई नहीं, रुक जाओ, बच्चे को खेलने दो इसको. हम लोग इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, यू वोंट बिलीव. वी हैड आईज, लाइक हमारी आंखों में आंसू आ गए कि ये वही बच्चा है कि जिसे हम लोग बीच में ले जाते थे और छोड़ देते. मतलब he had no idea, पानी के सिवा उसके पास कोई आइडिया नहीं था करने के लिए. and he is happily chasing that thing. like it's a long way to go, but ये छोटी छोटी जो स्टेप्स है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स है, हम लोग को ऑनलाइन से ही मिला है. ऑनलाइन से ही मिला है कि अगर शायद ऑफलाइन होता तो हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम ये चीजें करें, इतनी वैरायटी ऑफ स्पेसेस में जाएं, वैरायटी ऑफ ये एक्सपीरियंसेस करें. तो आई थिंक it's like ये it has helped a lot. एज अ पेरेंट आई नो मैटर करती है. एज अ पेरेंट हमने एक छोटा सा भी स्टेप लिया तो इट्स अ बिग सेलिब्रेशन फॉर अस. और अगर ये ऑनलाइन मिल रहा है हमें घर बैठे, तो वो कितना ज्यादा अच्छा मतलब है, ये समझ सकती हूँ. जैसे आप बैंगलोर में और थेरेपीज मुंबई से चल रही है. मुंबई से चल रही है. हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा चीज है कि अब एक शहर मतलब सिटी स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है. आप जब जो भी पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, आपको जो भी बेस्ट लगता है, बेस्ट थेरेपिस्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, वो मिल सकता है. ये नहीं कि भाई बैंगलोर में ही कुछ करो या यहाँ पे ही जाओ. तो ये एक एडेड एडवांटेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क Harshali ma'am, sorry. Hello. Arpana. Yeah, actually I also want to add some 2-3 points in the first. And मैम, जैसे मैम ने बोला कि प्ले इज अ की रोल, बिकॉज पहले हमें पता ही नहीं था कि प्ले का इम्पोर्टेंस क्या है. बट जब हमने ऑनलाइन सेशन में स्टार्ट किया अंडरस्टैंडिंग कि प्ले करना अपने बच्चे के साथ, एंड वी हैव स्टार्टेड दैट, और उसके बाद से इतनी चेंजेस आनी चालू हुई, क्योंकि बच्चा, बाद में हमें पता चला कि हाँ, बच्चा भी खुद सीखता है, वो जब वो प्ले करता है, हमारे से सीखता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सीखता है. जो मैम ने बताया, उसके अलावा मेरे बच्चे में जो डेवलपमेंट जो हुआ, उसका आई कांटेक्ट, वो देखना चालू किया, उसने उसमें ना एक्सप्रेशन आने चालू किया. जैसे अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो वो अपनी खुशी जाहिर करना चालू किया. वाओ, अगर कुछ गर्म है तो बोलेगा हॉट, कोल्ड.
मतलब उसका जो एक्सप्रेशन आने लगा वो हमारे साथ है, तो वो खुशी उसने मतलब जाहिर करना चालू किया। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मतलब वो किधर भी जाएगा तो वो इतना इंश्योर करता है कि मम्मा भी रहे पापा रहे। एंड उसको भी ये समझ में आता है कि हम उसको कहीं थेरेपी सेशन के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, हम उसके साथ खेलने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं। तो पूरा बच्चे का माइंड सेट भी एक डेवलपमेंट हो जाता है उसका। तो ओवरऑल जैसे मैंने बोला कि आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्लस बाहर का भी जो इन्वायरमेंट है, ये गार्डन है, गार्डन में हम कैसे खेल सकते हैं, मतलब सारा कुछ इसमें मैम डेवलपमेंट होती है। यस यस, ट्रू ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के पास आ रही थी मैं, टेक अवे फॉर पेरेंट्स फ्रॉम वर्चुअल सेशंस, आपको क्या? ओके, मैम सबसे पहले वर्चुअल सेशन का जब नाम आता है तो लोगों को यही लगता है कि अरे कैसे ऑनलाइन में कैसे होगा, बिकॉज इट्स रियली मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मेरे लिए भी यही था पहले कि अरे ऑनलाइन में तो कैसे होगा, बच्चा तो ऑनलाइन क्लास में ही बैठता नहीं है, स्क्रीन को देखता नहीं है, तो फिर वो कैसे हो, मतलब इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट मेरी जो थेरेपिस्ट थी मेरे बच्चे की, उनका नाम है प्रियंका अशर मैम, एंड शी इज वेरी गुड। तो मैंने उनको पूछा कि मैम ये कैसे होगा, तो 15 मिनट भी नहीं बैठता है, फिर कैसे हमारा सेशन क्लास कैसे स्टार्ट होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे का इसमें तो उसको मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसके साथ खेलोगे, आपको प्ले करना है और बच्चा और आप इंगेज रहोगे। इट डजंट, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो उसको स्क्रीन की तरफ देखना है या मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी उसको फॉलो करना है। इस तरीके से मैंने बोला अच्छा अच्छा, तो प्ले कैसे करना है, अगेन सेकेंड थिंग कि अच्छा ये तो चलो ठीक है, बट विदाउट इंस्ट्रक्शन मैं कैसे 1 घंटे कैसे करूंगी। तो जब पहला सेशन हुआ था तो मैम ने मुझे बोला कि आप जैसे उसके साथ खेलते हो वैसे ही मतलब खेला करो। मैंने बोला ठीक है। देन मेरे माइंड में जो उसको अच्छा लगता है, रिंगा रिंगा या फिर उसको ब्लॉक्स या कुछ भी चीज है, देन आई हैव प्लेड। ओके। तो वो कुछ 30 मिनट्स ऐसा हाफ एन आवर मेरे साथ इंगेज रहा, खेला, एंड उसके बाद नहीं किया। तो मैंने मैम को बोला दैट कि अब तो नहीं इंगेज हो रहा, अभी क्या करूं। देन शी टोल्ड टू मी कि आप एक काम करो, उसके जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट की जो चीजें हैं, जो बच्चे को अच्छा लगता है खेलना, क्योंकि द की रोल हियर इज प्ले। तो यस प्ले की उसके जो इंटरेस्ट की चीजें हैं वो आप एक नोट डाउन करो, उसको कितना आप क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके से आप उसको इंगेज कर सकते हो। एज अगर कोई थर्ड पर्सन अगर देख रहा है आप लोग दोनों को, तो शुड लुक लाइक दैट बोथ आर ऑन द सेम एज, and that will help in terms of the bonding. So this is a key difference what I mean to say here, because कहीं भी आप बाहर आप अगर जाते हो फिजिकल, जैसे वहां पे सेंटर पे, वहां पे एक थेरेपिस्ट आपको गाइड, बच्चे को गाइड करती है, बच्चे का मन है या नहीं है, बच्चे को वो रो रहा है नहीं रो रहा है, दे आर नॉट बॉदर, एक पर्टिकुलर करना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बच्चे का मन सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चा क्या चाहता है सेकेंड थिंग, एंड देन उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे आप कैसे उसके साथ इंगेज हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्चुअल ऑनलाइन सेशंस में दे विल आल्सो गाइड यू कि फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो पानी के साथ कैसे हम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उतना नहीं सोच सकती हूँ, बट मुझे वर्चुअल ऑनलाइन सेशन में मुझे गाइडेंस मिलता है। अच्छा पानी में ऐसे टॉयज को डाल दो, बाथिंग फोम को डाल दो, कभी बीच पे ले जाओ, कभी ऐसे ग्लास से करो, यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज, जहाँ पे बच्चा प्ले करता है विथ हिज स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड ही इज लर्निंग ऑल्सो, बिकॉज बच्चा प्ले करता है तो वो लर्न कर रहा है। सो डेफिनेटली वर्चुअल ऑनलाइन सेशंस इट रियली हेल्पफुल फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट और बच्चे दोनों इंगेज होकर काम करते, खेलते हैं, प्ले करते हैं, एंड आपको डेफिनेटली गाइडेंस भी मिलता है आफ्टर द सेशन कि आपने क्या किया है, इसको कैसे आप और अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग इंजॉइंग बना सकते हैं। इस तरीके से मैम हेल्प मिलता है वर्चुअल सेशन से। ग्रेट ग्रेट। स्वर्णिमा जी आपको कुछ ऐड करना है या फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकती हूँ, आप बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँ, वैसे दोनों मैम ने काफी कुछ बता दिया जो एक्चुअल है। सुमन बस मैं इसमें सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगी कि क्या होता है जब हम ये सब थेरेपी चल रही होती है। आपको आवाज आ रही है मैम?
हाँ, थोड़ा आप पास लीजिए थोड़ा सा ये जो माउथ पीस है। ओके, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है। हेलो। हाँ ये हाँ हाँ, हाँ तो मैं बस यही कहूंगी, इसमें इतना ऐड करूंगी कि जैसे जब हम करा रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे अभी मेरे बेटे का थोड़ा सा कुकिंग का हम लोगों ने लिया है, तो कुछ कुछ वो बनाना शुरू किया है। तो क्या है ना, प्ले भी कर रहे हैं जैसा उसका मन होता है, तो उसमें छोटी छोटी चीजें वो अच्छी करता है जो हम कहीं ना कहीं देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन जैसे प्रियंका मैम है, तो वो हमें बताती है कि देखो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और हम तो उसको देख ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं स्किप कर जा रहे हैं कि कितना वो की पॉइंट है जिनको हम मतलब उन्हीं को लेके आगे चलना है। तो वो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन सेशन में हम डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं अपने बच्चे से, और मतलब जिंदगी में तो जिंदगी भर तो हमें ही रहना है अपने बच्चे के साथ। तो कैसे हमें करना है, क्योंकि थेरेपिस्ट तो पूरी जिंदगी नहीं रहेंगे ना साथ में, और उसके जो छोटे छोटे की पॉइंट है उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख ही नहीं पा रहे कि हमारा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, वो तो हमने देखा ही नहीं। तो वो जो हम्म। वो बताते हैं उस टाइम पे, और हमें रियलाइज होता है वाओ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इतना बढ़िया। तो वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जैसे हाउ वर्चुअल सेशंस आपके कैसे स्टार्ट हुए हैं, आपका माइंडसेट कैसे था, बिकॉज आपका जर्नी में थोड़ा लॉन्ग रहा है, तो कैसे हम्म। आपने स्टार्ट किया है? मैम, इससे पहले मैं थेरेपी करा रही थी यहीं दिल्ली में, तो फिर जब कोरोना का हो गया तो उन्होंने भी ऑनलाइन शुरू कर दिया था। तो ऑनलाइन हमने उनके साथ शुरू किया, लेकिन वो बिल्कुल अलग था और ये बिल्कुल अलग है। मतलब इस उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे थे बहुत सारी, तो कैसे उसको कपड़े पहनने हैं, कैसे उसको क्या करना है, तो वो स्क्रीन पे ही मैं उसको खड़े होके कराती थी, तो वो फेडअप हो जाता था। कहीं ना कहीं हम लोग भी मतलब थोड़ा सा ये हो रहे थे। लेकिन ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब जैसा मैम ने बताया, अपना मैम, कि हम बच्चे के हिसाब से चलते हैं, बच्चे को हमें अपने हिसाब से नहीं चलाना है। तो बहुत अच्छा। और हम इसको ना क्या है कि पूरे दिन हम अप्लाई कर पाते हैं इसको। मतलब बहुत इजी हो गया, हमारी लाइफ भी इजी हो गई है, और हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं। और मैंने उसके संग बहुत हार्ड वर्क किया है, अपने बेटे के संग बहुत 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 हार्ड वर्क किया, लेकिन हमको कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं। लेकिन अभी जो मैंने ये ऑनलाइन सेशन शुरू किए ना, तो थोड़े से ही वर्क में मुझे अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। आज वो मैगी बनाता है, उसको पता है कि पूड़ी कैसे डालते हैं, क्या करते हैं। मतलब पूड़ी का उतना अच्छा तो नहीं अभी कर पा रहा, चल रहा है, लेकिन उसको पता है सब। मखाने को कैसे मेरे को भूंज के खाना है, मैगी तो वो पूरी बना लेता है। कैसे टेबल अपना वो करना है, सिंक में रखना है जा करके। और ये सब ना पहले कहीं ना कहीं थोप रहे थे उसके ऊपर हम कि करो ये करो वो, लेकिन अभी वो इजीली करता है। और एक बार में, और जैसा कि मैंने बताया आई कांटेक्ट में, तो आई कांटेक्ट के लिए तो बिल्कुल इतने अच्छे से कुछ पार्ट बिल्कुल मुड़ के देखेगा, उसका जो फटाफट मुड़ के देखेगा, और इतने अच्छे से कुछ लगता ही नहीं कि एक टाइम वो था कि मतलब ये देखता ही नहीं था। तो ये सब चीजें कैसे चेंज हो गई पता नहीं चला। तो तो मतलब बहुत आपका जो बढ़िया। पहले पहले से ज्यादा वैसे माइंडसेट आपका जो था पहले कि हाँ अरे ये ऑनलाइन नहीं काम करता है, हाँ ऐसे लगता है हाँ, पता नहीं नहीं क्या मतलब बहुत कर। फेडअप हो गया था। हाँ बेटे, अब उसको हाँ पैंट पैंट पहनाना सिखा रहे हैं, तो वो आधे घंटे का अगर सेशन है तो आधे घंटे तक वो पैंट और टी शर्ट कितने बार उतारेगा और कितने बार पहनेगा। तो हाँ हाँ, वो भी कैसे वो भी एक्सरसाइज वो कराएंगे, हाँ कैसे हाँ करवाएंगे, ये सब माइंड में होगा ना आप जब हाँ हाँ। स्टार्ट करने से पहले। हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ वेबिनार अटेंड किए थे सर के, तो थोड़ा तो मुझे समझ में आ गया था कि हमें प्ले करना है। और मैं बिल्कुल चेंज हो गई अपने बच्चे के लिए। पर इतनी स्ट्रिक्ट थी, पहले पहले जो थेरेपीज कराई थी उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे करना है वैसे करना है, इतना स्ट्रिक्ट। मेरे मतलब कहती नहीं, बचपन छीन छीन ले रहे थे मेरे बेटे का। कहीं ना जी कहीं जी। उसकी मतलब टेंशन था, और वो टेंशन में ही रहता था उसके फेस में। हम्म। तो मुझे लगता था हो सकता है ऑटिज्म में बच्चे ऐसे ही रहते, मैंने दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही देखा है। लेकिन अभी वो हैप्पी रहता, खुश रहता है, और हम भी खुश रहते हैं। तो अभी कितना प्यार देना उसको, कितना बहुत सारा। और मतलब बहुत बढ़िया है। तो मैं एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं आप, मतलब जो करवाते हैं ना ऑनलाइन, हम्म, तो हाउ हाँ थेरेपिस्ट आपसे कैसे एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं वो? हाँ, एक्सरसाइज। हेलो, हाँ हाँ जी हाँ मैम, मेरे से पूछ किस। हाँ, आपसे ही पूछ रहे हाँ, सुन। एक्सरसाइज जैसे बॉल एक्सरसाइज है, तो अगर एक्सरसाइज की बात करें तो
वो अपना इधर जैसे कुछ भी कर रहा है, या आया बॉल के पास आ गया, वो खुद ही बैठ गया, वो खुद ही बॉल से एक्सरसाइज करता है अपनी। तो अगर हाँ उसी में मैं आ गई, उसी में मैंने उसको अपना इधर साइड वाइड रॉकिंग कर दिया, फिर थोड़ा देर करा, फिर वो चला गया कुछ और करने लगा। मतलब एक्सरसाइज भी बीच बीच में हो रही है कहीं ना कहीं, उसको पता भी नहीं चल रहा है, और वो खुद भी बाउंसिंग कर रहा है, खुद ही कर रहा है, मतलब चीजें हो रही हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम एक्सरसाइज, और हमें भी नहीं, मतलब जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको लगातार ये स्टेप किया फिर वो स्टेप किया, नहीं, वो आ रहा है जा रहा है, उसको हम बॉल बॉल के साथ एक्सरसाइज दे रहे हैं, या उसके संग खेल रहे प्ले कर रहे हैं, जैसे नेक मसल्स का बताया है, उसके ऊपर मैं उसको किस कर रही हूँ इधर माथे पर, वो उठा रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि एक्सरसाइज हो रही, वो तो सोच रहा है मम्मा किस कर रही है मेरे को, तो वो हाँ बार बार हाँ। अपनी यूं गर्दन ऊपर कर रहा है और एक्सरसाइज चल रही है। तो मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा। सुमन जी या अर्पणा जी, आप ऐड करना या चाहेंगे एक्सरसाइज ये पे? मैं ऐड करना चाहूंगी पेरेंट्स के लिए कि एक्चुअली वर्चुअल सेशन स्टार्ट मतलब कैसे होता है। सबसे पहले सुमित शिंदे सर है, पर वो बच्चे का हमारे साथ कंसल्टेशन होता है, प्रॉपर प्रॉपर ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, एंड जो भी बिहेवियर टैंट्रम जो भी चीज हम एज अ पेरेंट हमें फील होता है कि हमें शेयर करना है अपने बच्चे के लिए, या हम क्या देखना चाहते हैं व्हाटएवर, वो पूरा शेयर होता है। सर पूरा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, एंड जो थेरेपिस्ट है जैसे प्रियंका मैम, सर और मैं, हम लोग का तीनों का होता है कंसल्टेशन फॉर माय चाइल्ड। उसके बाद एक प्रॉपर एक गोल शीट बनता है मैम कि बच्चे के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए हमें किन चीजों पे काम करनी है, तो एक प्रॉपर गोल शीट बनता है। इसके अलावा आपको एक पेरेंटिंग प्रोटोकॉल भी मिलता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं पहले बहुत, जैसे मैम ने भी बोला कि बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैं भी हर चीज में नो 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 ऐसे बहुत बोलती थी, नो 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 ऐसा। बट मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे कि सर ने मुझे गोल दिया था कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आई वांट टू सी अ चेंज दैट आप उसको रोकोगे टोकोगे कुछ नहीं। तो आपको एक गोल दिया जाता, 5 to 6 गोल्स बनते बच्चे के डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, अलॉन्ग विथ पेरेंटिंग प्रोटोकॉल के लिए गोल्स मिलते हैं कि आप एज अ पेरेंट क्या मतलब चेंजेस ला सकते हैं, या क्या आप एज अ प्ले में या क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे को हेल्प हो। एंड फिर अगेन एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल मिलता है एज अ थेरेपिस्ट, उनको क्या क्या चीजें वर्चुअल मतलब सेशंस में कवर करना है। तो एक्सरसाइजेस मतलब एक नॉर्मल हम sync, टर्मिनोलॉजी yes, में yes, बोले it's a तो जी। sync, it's a actually sync between goals, child goal, parents goal and the therapist goal, okay। तो फिर उसके बाद वो पूरा डिस्कशन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आपके थेरेपिस्ट आपको बताते हैं। जैसे बॉल में किस तरीके से एक्सरसाइज करानी है आपको, वो आपको वीडियो सेंड कर देंगे। सो आपको पता है कि बॉल में किस, जैसे जंप बाउंसिंग कराना है या पीछे लेटा कर कराना है, किस तरीके से एक्सरसाइजेस कराने हैं, उसके साथ आप कैसे प्ले करा सकते हो। तो ड्यूरिंग द सेशन, और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, कि अगर बच्चे का मन नहीं है तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं करानी है। आप स्लोली जाओ, धीरे जाओ, चलेगा, बट धीरे धीरे जब वो एंजॉय करने लगेगा वो सारे एक्सरसाइजेस में, बॉल में, आप तो फिर मतलब वो लोग भी ऑनलाइन में बोलते हैं कि आप एक बार करके करो, ताकि उनको भी समझता है, वो फीडबैक आपको दे पाएंगे कि किस तरीके से और उसको एंगेज कराओ। तो एक्सरसाइजेस भी कवर होती है, एंड गाइडेंस भी मिलती है, और एक राइट डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं मैम। यस मैम। या सुमन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी एक्सरसाइज के बारे में? ये दोनों मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया है ये चीज। सी व्हाट आई सी कि एक्सरसाइज का जो वीडियोस शेयर करते हैं और जो सेशन में इटसेल्फ जो करते हैं, और सर देखते हैं कि भाई कहाँ गलत है कहाँ नहीं सही कर रहे हैं, हाउ टू इम्प्रोवाइज, वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हमको जो टारगेट दिया गया था वो दिन में 3 या 4 बार करवाना है एक्सरसाइज। तो अगर हम एक्सरसाइज जितनी बार करेंगे उतना इम्प्रोवाइज होगा, उतना हेल्पफुल होगा। तो अंडरस्टैंडिंग द राइट टेक्निक फ्रॉम वीडियो और फ्रॉम द ऑनलाइन सेशन इज मस्ट। और वो सीख लिया एक बार तो वो उसको अप्लाई करना बहुत इजी होता है। एक्सरसाइज क्या कोई बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं सूर्य नमस्कार या कोई बहुत बड़ा योगा वाला चीज नहीं है। दिस आर सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस
which we can go, जो यूजुअली बच्चे लोग करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि अभी एक मैम ने कहा कि बच्चों का बचपन छीन लेते हैं. आई रियली गो विद दिस वर्ड. जैसे ही ऑटिज्म डायग्नोज हुआ, बच्चे को थेरेपी में लगा दो और दे बिकम सो मैकेनाइज्ड. उसका बना दो, टाइम शीट बना दो, 5 बजे उठना है, 6 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है. लाइक व्हाट आर वी मेकिंग अ रोबोट्स और व्हाट? मतलब वो जो बोला उन्होंने कि भाई बच्चों का बचपन छीन लेते हैं, एग्जैक्टली यही होता है. अगर ऑटिज्म से प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो तो थेरेपी से ज्यादा हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसे ही लगता है कि इतना ज्यादा रिग्रेस एंड इतना ज्यादा लाइक स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भाई ऐसे ही करना है, दिस इज द वे, जस्ट विदाउट थिंकिंग कि भाई बच्चे का भी एक वे होगा, एक वो होगा, वो नहीं हो पाता है. तो यस, तो ऑल दिस थिंग्स हेल्प. और जो ऑनलाइन में जो रोक के बताते हैं सर, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है. ओके, पीयूष जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं मम्मी जो कह रहे हैं स्वर्णिम? यस मैम, यस मैम. देखिए, पहला बेनिफिट वर्चुअल सेशन का मैं दिखाता हूँ कि मैं घर पे था, अभी पार्थ थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहा था, तो मुझे ज्वाइन करना था आपका सेशन जी. लेकिन मुझे लगा कि अब एक आदमी को देखना पड़ता. आई टोल्ड वाइफ कि तुम ज्वाइन करो, मैं इसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले जा रहा हूँ, झूला ग्राउंड झुलाता हूँ. अभी यहाँ इसको लाके मैंने छोड़ा और आपका सेशन ज्वाइन किया. देखिए, नाउ ही इज सिटिंग इन अ झूला and very calm and quiet. Is he visible to you, ma'am? Yes, sir. So nice. And Great. now he is cool and enjoying here. So this is the main benefit of virtual session. You know, you are getting more space. घर का पूरा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, घर में बहुत सारा चीजें एक्सप्लोर करने मिलता है. You can give more opportunity to your children. And moreover, अगर सही गाइडेंस मिल रहा है तो tremendous development will be there in a child. So this is the main benefit. Now I am also enjoying virtual session with you all. Great. This is the thing. Yes. आपको कोई परेशानियां, मतलब what challenges did you face during virtual sessions? वर्चुअल सेशन से के चलते हुए क्या परेशानियां आई आप लोगों को, मतलब उसमें? एक्चुअली जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था तो उससे पहले तो ये क्लिनिक में ही जाता था, तो वहां पे क्या करते थे, थेरेपिस्ट अंदर ले लिया बच्चे को, आफ्टर 45 मिनट्स वो बाहर आ रहा है. जब हम इंसिस्ट करते थे कि लेट अस सिट इनसाइड, कि हम भी कुछ सीखें ताकि उसे सिखा सकें, तो समटाइम्स दे अलाउ, समटाइम्स दे डोंट, बिकॉज बोलेंगे कि अगर आप बैठोगे तो वो रेस्टलेस हो जाएगा. तो वो हमें पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है अंदर. और उसके बाद जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो वही जो सेंटर्स थे, वही जो थेरेपिस्ट थे, वो ऑनलाइन सेशन के लिए कहने लगे. तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन सेशन. ऑनलाइन सेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो तरीका था वो वही था, क्लिनिकल वाला. और उसमें क्या होता था कि सेशन शुरू हुआ तो हमें वो सेशन में इसको कुछ सिखा देना है, मतलब दैट वाज द एम एट दैट टाइम. ये 45 मिनट का सेशन है तो आज कुछ तो एक चीज इसके अंदर डाल देना था कि ये सीख जाए. वो दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग. हम लोगों का क्या है कि वर्चुअल सेशन जैसे 5 का शुरू होता है तो जिस कंडीशन में होते हैं, जैसा रूटीन चल रहा होता है घर का, उसी रूटीन में हम सेशन कराना शुरू कर देते. सपोज इफ ही इज हंग्री तो उस टाइम इसका खाना बनाना शुरू कर देंगे, या ही वांट टू गो आउट तो हम कार से ले जाते हैं, कार में ही सेशन हो रहा है. तो ये बेनिफिट है काफी. और अकॉर्डिंग टू हिज नीड हम उसको मूव कराते हैं तो वो भी हैप्पी रहता है, और उसमें उसकी लर्निंग थोड़ा ज्यादा हो जाती है, एक्चुअल लर्निंग, इनर लर्निंग हो जाती है. अर्पणा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे आपसे स्पेसिफिकली पूछना था कि आपके क्या चैलेंजेस आए आपको वर्चुअल सेशन में, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा उसमें, या फिर बाकी चैलेंजेस कैसे रहे आपके इसमें? ओके, मतलब चैलेंजेस अगर ऑनलाइन सेशन में यही आता है, कभी कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, एंड देन वी गेट स्टक. बट फिर वही होता है कि जो प्ले है हमारा, प्ले कंटिन्यू रहता है, एंड फिर जो भी है हम कर रहे हैं तो कर, वी डोंट स्टॉप.
अदरवाइज उतने मेजर चैलेंजेस मैम नहीं आए हैं। फैमिली सपोर्ट का जहाँ बात है, डेफिनेटली मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडेंस मिलता है कि एज अ फैमिली आपको कैसे काम करना है। तो जैसे मेरे यहाँ मैं हूँ, मेरे बच्चे के बच्चा है, पापा है, दादी है, हम लोग 4 लोग हैं। तो हम लोग चारों लोग मिलकर ऐसा मतलब काम करते हैं। एंड ऐसा नहीं कि पूरे टाइम मैं ही रहती हूँ। जैसे दादी है तो दादी भी उसके साथ खेल रही है। फिर मेरे यहाँ अगर काम करने वाली कोई हेल्पर है तो वो भी उसके साथ आती है। तो सबसे पहले बाबू हाय, या जाने समय बाबू बाय, स्पेसिफिक, मतलब उसको भी पता है कि उससे उसको बात करना है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बच्चा ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है, वो सबके पास जाता है, सबके साथ वो ऐसे घुलने मिलने लगा है। मेरी जो हेल्पर है उसके पास भी जाता है, अगर उसको पानी पीना है तो उसके पास भी जाता है, उससे भी, उसके साथ भी अटैच्ड है। फिर नीचे अगर जाते हैं तो जो गार्ड है वो भी स्पेसिफिक है, बाय बाबू कहाँ गए थे। मतलब सब लोग उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करते रहते हैं डे इन डे आउट। तो उसको भी पता है कि वो अंकल को मुझे बाय तो करनी है। तो इस तरीके से हर जगह सबका इन्वॉल्वमेंट है मैम। ओके, सुमन जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? आपके कुछ चैलेंजेस आए, आपने कैसे उसको ओवरकम किया? चैलेंजेस तो एज सच, मतलब जब हम लोग ने स्टार्ट किया फर्स्ट ऑनलाइन सेशन, इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट कि भाई अभी ऑनलाइन करेंगे कैसे, क्योंकि तो फिर जब स्टार्ट किया तो क्या होता था कि सब कुछ खुद ही करना है। तो लाइक थेरेपिस्ट बता रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द एक्सरसाइजेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो खेलना है दैट वाज ठीक है, वो तो दैट इज लाइक डिफरेंट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस ऐसा लगता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या कैसे। और मेरा बेटा बड़ा है, ही इज माई सेम हाइट, मेरे सेम हाइट है, 12 इयर्स का है। तो मतलब इतने बड़े बच्चे को कैसे कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो लाइक वी वर वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट दैट। सो बट वंस वी डेवलप कि भाई हमारा कनेक्शन हो गया, ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग ऑन हिज ओन, तो दैट एप्रिसिएशन इज कम्प्लीटली गॉन। नो चैलेंजेस तो कुछ नहीं आया। फायदा ये हुआ कि एक्सरसाइज कराने में मेरे खुद का वेट लूज हो गया है। तो दैट्स एडेड पॉइंट आ बेनिफिट, गया एक और वर्चुअल plus का। point है. I am not able to say add any negatives about it. I'm Yeah, just adding the positives only. that So is the big positive for our mothers. खुद खुद करा रहे, एक्सरसाइज करा रहे हैं, और हम उनका तो हो ही रहा है, हमारा भी हो जा रहा है। तो वो भी एक बेनिफिट हो गया। वैसे फर्स्ट पॉजिटिव आउटकम क्या था आपका? आई मीन वंस यू स्टार्टेड विथ थेरेपी, फर्स्ट आउटकम आपको क्या लगा? For us, the first was like he showed some interest in play. और प्ले पहले कैसे होता था कि प्ले भी है, सब कुछ, मतलब टॉयज से घर भरा भरा पड़ा है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसका यूज कैसे करना है, उससे खेलना कैसे है, वो नहीं पता था। तो विथ हिम इट केम कि ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द टॉयज। और टॉयज और दूसरी चीजों से भी, मतलब जो टॉयज नहीं भी है उससे भी खेलने लगा। और लाइक बॉन्डिंग विद द फैमिली मेंबर्स, सब बहन के साथ, मेरे साथ, पापा, क्योंकि हम सब मिलके जब भी पॉसिबल हो सभी लोग मिलके ही ये करते हैं, करते एक्सरसाइज। इट्स नॉट एक्सरसाइज, हमारा इवनिंग का फन सेशन है ये। हमारे घर में मेरी छोटी बेटी बोलती, मम्मा लेट्स हैव फन विद भैया, दैट्स द नेम शी हैज गिवन। ओके, तो फन सेशन में हम एक्सरसाइजेस करते हैं, सब कुछ, वॉट एवर वी हैव टू डू इन दैट वी डू ऑल दिस एक्सरसाइजेस, वो सब करते हैं। और उसके बाद में see what we saw is like he started playing with the remote car. रिमोट को कैसे चलाना है, पहले तो रिमोट कार लेना मतलब उसको खाली ऊपर से नीचे फेंकना है और वो कैसे टूट के अंदर क्या निकलता है वो देखना है। इट्स लाइक कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं, बट ही स्टार्टेड फर्स्ट प्लेइंग विद द रिमोट। उसको आगे चला रहा है, पीछे चला रहा है और साइड में ले जा रहा है। तो दैट कनेक्शन बिटवीन रिमोट एंड कार, वो कनेक्शन होना कि भाई ये इससे चल सकता है, इससे हम लोग आगे घुमा सकते हैं। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट लाइक पॉजिटिव। एंड देन मुझे लगा कि नहीं, ही इज नॉट old for play, he's a small child only, he's a heart of a mind of a small baby. That is not a big boy कि भाई खेलने के लिए बड़ा हो गया है, nothing like that, he's still as like that.
So that was the thing, and then we never looked back. Now he plays with anything and everything, and relationship and play and think cooking, sab kuch, it's going on with the full speed. How did therapy process happen? I mean, थोड़ा सा अर्पणा जी ने बताया, तो कैसा लगा वो therapy process कैसे हुआ? How did that happen? Whole therapy process. So it started with Sir Sumit Sindhi sir say assessment, and then he setting up the target and goals and giving goals, personal goals to us. So it started, and then we were assigned Somil sir. He's a very good therapist, I'll say. Like he has ऐसे कहते हैं ना कि अगर मैं कहूँ कि he has a like big bank of ideas of play, and उन्होंने हमको एक वो कार्ड दे दिया है, all time swap कार्ड. अंदर जाओ, जितना भी निकालना है निकालो, यूज करो, इट्स अनलिमिटेड यूज वाला चीज हो गया है. सो कुछ भी कोई भी चीज अभी कभी ऐसा नहीं होता था कि ही इज आउट ऑफ आइडियाज. अरे भाई बॉल खेल रहे हैं, चाहे कार साफ कर रहे हैं, उसमें भी उनको 1000 आइडियाज है. मुझे कभी कभी सोचती हूँ ये आदमी को आइडियाज आते कहाँ से. मैम ऐसे मत करो, अरे मम्मा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. तो मतलब वो जो आज अगर सेशन हुआ है तो वो जो जितने आइडियाज देते हैं उसको यूज करने के लिए हमको 2-3 दिन लगते हैं. तो ये प्रोटोकॉल्स था. एंड देन वी लाइक हमारा जो रिव्यू होता है हर महीने, टारगेट जो होते हैं वो टारगेट अचीव करने हैं, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसमें और ऐड करते हैं. फिर मिड रिव्यू भी होता है बीच में कि भाई टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि कुछ डेविएशन हो रहा है. तो अगर डेविएशन हो रहा है एंड वी आर फेसिंग एनी चैलेंजेस कि भाई उसे जंप करने के लिए नहीं आ रहा, रचित को डोंट नो हाउ टू जंप, और ही वाज नॉट एबल टू डू दैट प्लैंक नहीं करना आ रहा है, तो हाउ टू ब्रेक इट डाउन, हाउ टू ब्रिंग इट वन स्टेप बैक एंड देन डू इट. तो वो मिड रिव्यू में वो सब भी मुझे जानने के लिए मिला. ही वाज नॉट एबल टू डू ब्लाइंड फोल्ड, तो शी सजेस्टेड, मैम सजेस्टेड कि ब्लाइंड फोल्ड डायरेक्टली करने से अच्छा है कि एक रूम को अंधेरा करो और उसमें रहो, तो एक आईज विल गेट यूज्ड टू दैट अंधेरा थिंग एंड he will be able to do. तो हम लोग अभी ब्लाइंड फोल्ड भी कर सकते हैं. so that breaking down of targets जो होता है and Yes. then achieving it and reviewing करना, अभी हमारा 6 months हुआ है and we have already reviewed for the second third time. तो सोचो इतने शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने इतना सब अचीव किया है एंड वी आर गोइंग वेरी फास्ट. मैं बोलूँ तो अगर क्योंकि इट इज हैपनिंग विद द किड्स एनवायरनमेंट, बच्चे के एनवायरनमेंट में, फैमिली में, और इट इज नॉट जस्ट कि एक घंटे का सेशन है और वही सिर्फ है. 1 घंटे का सेशन तो हाईलाइट है, खाली वो ट्रेलर है. वो पूरा 1 घंटे में जो हो रहा है वो पूरे दिन में होना है. वो ट्रेलर जो दिखाते हैं वही ट्रेलर दिखा दिया, अब भाई ये करते रहो, और वो एक दिन भी कम पड़ जाता है हमारे लिए करने के लिए, इतने सारे आइडियाज हो जाते हैं. So this is the protocol, about the protocol. Okay. I'll come to Swarnima ji. What were your concerns with your child, like in terms of development, behavior, and learning? And what changes you seen in your child with respect to these development, behavior, and learning? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे सुमित सर ने Can't. हेलो, हाँ हाँ हाँ, जैसे सुमित सर ने जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग का उन्होंने जो आइडिया दिया था, बताते हैं जो, वो सबसे बढ़िया. क्योंकि पहले कहीं ना कहीं था कि बच्चा तो मेरी तरफ आ रहा था, अब मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट थी बहुत ज्यादा, और तो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग बन नहीं पा रही थी. लेकिन अभी क्या है कि मैं भी बच्चे की तरफ जाने लगी हूँ. बहुत ज्यादा हमारे बीच में प्यार, बहुत ज्यादा हमारे बीच में प्ले, तो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है. अभी वो मैं किचन में हूँ तो वो आएगा, थोड़ी देर में मेरे पास आएगा, मेरे को मतलब हक करेगा, या मम्मी क्या बना रही है, क्या कर रही है. तो बिहेवियर अपने आप ही कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं ना, मतलब नॉर्मल जो हमें लगता था कि अरे, तो वो सब चीजें. और दूसरा, किस चीज को हमको अवॉइड करना है, जैसे कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियर हैं जिनको लेके हम बहुत टेंशन में आ जाते थे,
अभी क्या है कि उनको मुझे अवॉइड करना है, और वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जो अपने आप ही जा रहा है, जिसको लेके ही मैं टेंशन में रहती थी कि अरे ऐसे कैसे, ये क्या, कब होगा, किधर होगा, तो वो सब, तो बिहेवियर तो अपने आप, बिहेवियर कुछ मतलब नहीं रह गया बिहेवियर का। और बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है हम हमारे माँ बेटे के बीच में, बहन है उसकी सिस्टर है उसके बीच में, और पापा के बीच में, मतलब हमारा नजरिया ही बिल्कुल चेंज हो गया है जिसे कहते हैं। तो अब सब चीजें बहुत नॉर्मल लगने लगी हैं। तो सबसे बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी यही है कि हमारा बच्चा, हम उसको अलग तरीके, जैसे हम अपनी बेटी को देख रहे हैं ना, वैसे ही अब उसी नजर से उसे देखें। हर समय उसको ट्रेन करना, हर समय उसको कि नहीं अरे ये गलत कर दिया, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, तो वो सब खत्म हो गया, सब नॉर्मल है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो सबसे बढ़िया तो बॉन्डिंग और हमारे बीच का आपस में जो जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। तो वो सारा कुछ बहुत पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग में भी काफी आपको हेल्प हुआ है, बिकॉज आप बहुत खुद ही काम कर रहे हैं उसके साथ, इसलिए यही तो फायदा है ऑनलाइन सेशन में, ऑनलाइन का। यही मेन फायदा है। जी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्पणा जी, आप प्लीज हाँ, ऐड करें। यस यस। या मैं अपने बच्चे के बारे में बताना चाहूंगी, मतलब क्या क्या उसको इश्यूज थे जी। बिफोर कंसल्टिंग और गोइंग थ्रू द वर्चुअल ऑनलाइन सेशंस। मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा टैंट्रम था उसका, स्टबर्न था, उसको करनी नहीं थी। और वो मतलब नेम कॉल भी था, अगर मान लो 10 है तो वो 2 ही बार देखता था। मतलब उसको ऐसा लगता था कि हम बोल रहे हैं तो वो देख ही नहीं रहा, वो अपने में ही खेलता रहता था। वो मॉर्निंग में उठता था, टॉयज को पूरा ऐसे जमीन पे रख दिया, उसी में ही रहता था। वो आई कांटेक्ट हमें भी नहीं देखता था, इमोशनल कनेक्ट बॉन्डिंग नहीं था। और मोबाइल के लिए उसको बहुत जिद था। मतलब ऐसी किसी भी चीज के लिए नहीं बोलता था, मोबाइल के लिए बराबर आके बोलता था, गिव मोबाइल बेबी, अपने को बेबी बोलता है तो गिव मोबाइल बेबी। अगर नहीं दिया तो वो हेड बैंगिंग भी करता था, बाइटिंग भी करता था, मतलब बहुत गुस्सा करता था। तो फिर एट लास्ट हम लोग दे देते थे पहले कि चलो ठीक है, और वहां पे वो स्टॉप नहीं होता था। वो 1 घंटे का, 2 घंटा, 3 घंटा कब हो गया पता नहीं चलता था। फिर अगर मैंने देखा कि मोबाइल पे ही है, वो अपने में ही खेलता रहता था, कनेक्ट नहीं था हमारे साथ, हमारे पास नहीं आता था। टॉयज, मोबाइल, यही 2 चीज में रहता था। और बिहेवियर इश्यूज बहुत था। बैठने की भी उसकी इच्छा नहीं होती थी। मतलब उसको लगता था मुझे क्यों बैठा रहेगा, क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस था पहले की, क्योंकि मैं वही करती थी। वो बैठता था तो फ्लैश कार्ड दिखाया, व्हाट इज दिस, ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो बिफोर वर्चुअल सेशन। तो उसका क्या माइंडसेट था कि मुझे चेयर पे बिठाया है तो मुझसे कुछ करवाएगी। तो उसको मतलब बैठना नहीं था, वो वहां पे भी टैंट्रम शो करता था, रोता था बहुत। बहुत सारे इश्यूज थे इस अकॉर्डिंगली इन दिस लाइन। तो जब असेसमेंट हुआ मेरे बच्चे का, एंड जब सर ने गोल्स बनाया, एंड जैसे मैंने बताया कि उन्होंने मुझे भी बोला कि आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है और क्या क्या चीजें मतलब नहीं करनी है। जैसे नो नहीं बोलना, उसको टोकना नहीं है ज्यादा। एंड वो जब आपके पास आता है तो आप उसको उतना ही प्यार दो। और मैंने सर का पहले वेबिनार भी अटेंड किया था बिहेवियर्स का, कम्युनिकेशन का। तो उन्होंने, सर ने भी जैसे बताया कि कभी भी जब बिहेवियर होता है या टैंट्रम होता है, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द चाइल्ड, फॉर डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। ओके। तो वो चीजें का भी काफी नॉलेज मिला। अगर एज अ आफ्टर द वर्चुअल सेशन मेरे में क्या चेंजेस आया, आई एम टोटली चेंज नाउ। चेंज द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, मैं ऐसा फ्लैश कार्ड या जबरदस्ती उसको चेयर पे नहीं बैठाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्ले। मतलब उसके साथ पीकअबू खेलना, पर्दे के पीछे जाना। और ये स्लोली स्लोली हुआ है, ये ऐसा 1 डे या 1 मंथ में नहीं हुआ है। स्लोली स्लोली इट इज हैपन। जितना ज्यादा उसके इंटरेस्ट एरिया में जाके, जैसे प्ले है, मतलब फॉर द बाथिंग 25 मिनट्स हम लोग रखते हैं उसके टॉयज, बाथिंग फोम, वहां पे हम लोग ऐसा खेलते हैं। या फिर जैसे उसको क्ले है या कुछ भी चीज का एक्टिविटी जिसमें उसको पसंद है, या फिर चने ले लिया, राजमा ले लिया, एक बोतल से दूसरे बोतल में डालना, व्हाटएवर, मतलब जो भी प्ले उसको पसंद है वो बैठता है। उसके बाद उसने सबसे बड़ा चेंजेस देखा कि वो खुद से बैठने लगा। जैसे देखता था कि मम्मा ऐसे चने का डब्बा ला रही, खुद से जाके चेयर पे बैठ जाता था।
मतलब उसमें वो इच्छा शक्ति डेवलप हो गई, इंटेंट डेवलप हो गया कि मुझे चेयर पे बैठना, अभी मुझे मम्मी खेल खिलाएगी। सो दिस वाज द चेंज, द माइंडसेट चेंज हुआ बच्चे के भी मन में। सेकेंड थिंग है वो देखना चालू किया, आप पास में आना चालू किया, सबके साथ कनेक्ट होना चालू किया। एंड अभी जैसे वो मॉर्निंग में उठता है तो ये नहीं बोलता है कि मोबाइल, वो उठेगा तो मेरे को पकड़ेगा, बोलेगा पी कबू, मतलब मेरे साथ खेलो। तो जैसे जैसे उसका मोबाइल स्क्रीन टाइम कम होते गया और धीरे धीरे वो खेलने में मतलब इंक्लूड होते गया, उसका बिहेवियर टैंट्रम्स में वो भी चीज कम होना चालू हो गया। तो अभी ना जो पहले था और अभी था, नाउ ही इज अ हैप्पी चाइल्ड, वो खेलता है, एक्सप्रेस करता है जो भी चीजें हैं। एज अ पेरेंट जैसे मैंने बोला, जो मैंने फॉलो किया, मैं ऐसा जो भी चीज है जो प्ले का है, प्ले मेथड में जो भी प्ले करके खेल कर उसको समझाना, या जो भी इमोशनल बॉन्डिंग जो डेवलप हुआ है, एंड हर चीज में रोकना नहीं, और उसको जब तक कंप्लीट करता है उसको हर चीज में अप्रिशिएट करना, वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वाह, अरे क्या, अरे वाह कितना अच्छा किया, उसने जो भी ड्राइंग किया सब क्यों पूरा से फैमिली मेंबर्स को दिखाना और अप्रिशिएट करना। सो एक चीज जो मैंने फील किया है कि हमारे बच्चे सब चीज सुनते हैं, समझते हैं। हाँ, रिसेप्टिव। Yes, 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 ma'am. So this is what I'm saying, that I have changed completely now. यस। ओके, मैं एक सुमन जी से पूछना चाहूंगी कि आपका बच्चा बड़ा है एज में, लेकिन फिर भी आपका डेवलप मतलब उसका डेवलपमेंट हो सकता है ऑनलाइन या थेरेपी से, ये? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। व्हेन वी स्टार्टेड, हम लोग जब स्टार्ट किया था हमने, तो रचित वाज लाइक रचित वाज गोइंग टू अ स्कूल, ओपन काइंड ऑफ स्कूल। वहां पे वो लोग कोई ये नहीं करते क्या, स्केड्यूल फॉलो नहीं करते। इट्स लाइक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। जो रेस्ट ऑफ द थेरेपी सेंटर्स होते हैं उस तरह से नहीं, रिगरस नहीं है। तो व्हेन ही वाज डायग्नोस्ड एट द एज ऑफ 2.5 years, उसका बहुत ज्यादा टैंट्रम था, जिद्दीनेस और ऑल टिपिकल बिहेवियर्स ऑफ ऑटिज्म। और फिर जब हम लोगों ने 2-3 साल थेरेपी भी करने लगे तो उससे और ज्यादा एग्रीवेट हुए, काटना, मारना, पीटना, ये सब हो गया। फिर लास्ट 3 years वी वेंट टू वन मोर स्कूल विच इज लाइक ओपन। वहां पे कोई स्केड्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे अपने पेज में जा रहे हैं। लेकिन वहां पे भी एक नेगेटिव ये हुआ कि ही बिकम ओवर काम, मतलब ओवर काम हो गया, और मतलब ओवर शांत हो गया, कोई डिजायर्स नहीं, लाइक जेन काइंड ऑफ, जो होता है ना कि भाई दुनिया से ऊपर उठ गया, मुझे अब किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा शांत, इट डिसइंटरेस्ट इन एनीथिंग, खाने को है तो ठीक है, नहीं है तो हमारा वो था कि अभी भाई ये बच्चा अभी बड़ा ही है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन वाई ही सो इनएक्टिव, वाई सो लाइक कुछ अराउजल क्यों नहीं है, कुछ एकदम इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो वो हमारा कंसर्न था। वो उस कंसर्न के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि भाई उसने दिखाया इंटरेस्ट कि भाई मेरे को खेलना है, मेरे को घूमने जाना है, मेरे को, लेकिन हम लोगों ने सुना नहीं वो चीज। हम लोगों ने क्या किया, भाई जा थेरेपी कर, तू बैठ, ये कर, वो कर, एंड देन ही शट हिमसेल्फ डाउन कंप्लीटली। और फिर जब धीरे 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 हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको, उसके साथ खेलना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि दिस आउटकम हैज टू कम आउट ऑफ दिस सेशन, ऐसा नहीं, जस्ट कि खेलो, एंजॉय करो, और जस्ट बी हैप्पी, फन करो। एंड जब ये चीज हुआ कि भाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और खाली बस खेलना है, देन वी स्टार्टेड सीइंग द पॉजिटिव कमिंग। स्लोली ही गॉट अराउजल आ गया उसको, स्लोली ही गॉट इंटरेस्ट आ गया अबाउट एनवायरमेंट, स्लोली स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग व्हाट इज हैपनिंग। मतलब खुद से पिज्जा बनाने लग, पिज्जा बनाता है किचन में। मुझे जैसे ही मैं किचन में जाऊंगी, ही विल आल्सो कम एंड ही विल हेल्प मी कटिंग द वेजिटेबल, अनियंस, गार्लिक, वो सब कट करके देगा, हेल्प करेगा। फिर इवन बर्तन वर्तन साफ करने के लिए एवरी, लाइक he is not thinking कि ये सब एक्टिविटी है जो मुझे करना है। he is thinking कि भाई I am also part of the family, mama is doing, my sister is doing, my father is doing, I should also do it। तो एक कंप्लीट जेन और एक कंप्लीट विड्रॉल और कंप्लीट डिसइंटरेस्ट से इतना अराउजल और इतना अलर्टनेस और इतना
इंटरेस्ट जो आया है विद इन 6 months, विच इज ये बहुत अप्रिशिएबल है। तो अब वो अब मस्ती करता है, मुझे धक्का भी देगा, मेरे मुंह में पानी भर के मेरे ऊपर डाल देगा कि लो अब तुम, मतलब इट्स काइंड ऑफ प्रोवोकिंग मी टू प्ले विथ हिम, प्ले करो। तो which was different, which was not there earlier. Yeah, what changes did you observe inside you as a parent? I mean, how those changes help you to create parent-child bonding? See, Harshali, I'll say कि हम लोग open थे, since we are going to that school जहाँ पे कोई schedule नहीं है, कुछ नहीं है, parent bonding हो रहा है, सब कुछ है, हम लोग हम लोग इतना सारा घूमते हैं, इतनी नई नई चीजें दिखाते हैं, but where we were getting stuck is कि how to enter his world, उसके 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 दिमाग में और उसके वर्ल्ड में कैसे घुसना है, वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। मतलब ये होता था कि हम उसके साथ खेलना चाहते हैं, वो हमारे साथ खेलना चाहता है, वो बहन के साथ खेलना चाहता है, बहन उसके साथ खेलना चाहती है, इंटरेक्ट करना चाहती है, बट वी डिड नॉट नो हाउ। तो हम लोग एज अ फैमिली ओपन थे, पहले से ही हम लोग ओपन थे, और हम लोग कोई ज्यादा उसको ये भी नहीं कि भाई वी स्टॉप्ड ऑल द थेरेपीज वेरी लॉन्ग बैक, बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जस्ट स्टॉपिंग द थेरेपी इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ये मैंने देखा। इट हैज बिकम कि वो एकदम इनएक्टिव एंड अनइंटरेस्टेड, ही हैज बिकम अ काइंड ऑफ कोई कोई कुछ उमंग ही नहीं है लाइफ में, उस टाइप का हो गया। तो जब हमने ये स्टार्ट किया, थेरेपी स्टार्ट किया, तो हमारा जो बॉन्डिंग हुआ वो कमाल का था। हमारा जो बॉन्डिंग, अब हमको पता है कि उसके साथ कैसे खेलना है, उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है। ही इज नॉन वर्बल, ही इज 12 years एंड नॉन वर्बल, तो ये तो नहीं कि बोलेगा कि मुझे आके बोलने वाला नहीं है कि भाई मम्मा मेरे साथ ये खेलो वो खेलो। तो हमारा जो लैगिंग था कि भाई उसकी दुनिया में जाके उसको कैसे अलर्ट करना है, वो हमारा प्रॉब्लम था। which is happening very, अभी वो मतलब कुछ चीजें हैं, दिखाता है कि ये देखो ये ऐसी चीजें हो रही हैं, या फिर कुछ है लाके दिखाएगा कि मैंने ये किया है, अप्रिशिएट करो। या फिर यू शुड सी, व्हेन आई विल से सौमिल सर को मैं बोलूंगी कि सौमिल सर इसने ऐसे ऐसे किया, यू शुड सी द प्राउड इन हिज फेस कि भाई देखो ये मेरी बात हो रही है, काइंड ऑफ कि मैंने ऐसे किया हुआ है। दैट प्राउड फीलिंग, द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट and all these things has come with this online session, because हमने पूरा फैमिली को, पूरा घर को, और हम लोग ट्रैवल फ्रीक्स हैं, तो हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां पे थेरेपी कर लेते हैं। वहां पे हम लोग गुजरात गए तो वहां पे बड़ा सा फैमिली है, उन सबको मिला के हम लोगों ने थेरेपी कर, ऑनलाइन सेशन कर लिया। अभी गोवा गए तो वहां पे मेरे सब सास ससुर को सबको मिला के कर लिया। तो हम लोग ने अपना रूटीन नहीं छोड़ा है, एंड हाउ टू लाइक, इट्स नॉट लाइक कि कुछ अलग से करना है, अपना जो लाइफ है कैसे उसको ऑब्स्टिकल में से कैसे बाहर निकाल के स्मूथली बाहर निकालना है, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग। इट्स नॉट कि हम लोग कुछ बड़ा सा स्ट्रगल नहीं है, इट्स लाइक हाउ टू रन आवर लाइफ स्मूथली, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग। So for us, this was the main challenge and main achievement, I'll say. Great sir. Next question मैं स्वर्णिमा जी के पास आऊंगी कि डिफरेंस बिटवीन थेरेपिस्ट रोल एंड पेरेंट, मतलब थेरेपिस्ट का रोल क्या अलग होता है और पेरेंट का क्या होता है, और वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये आप बताना चाहेंगे? मैम पहले तो मैं एक एग्जांपल आवाज आपकी, हाँ, मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि हाँ। पहले हम पार्थ को कहीं थेरेपी कराने जाते थे, तो वहां जो मैम थी उन्होंने उसको मटर छिलवाना सिखाया। तो ये सोचिए कि पूरे सेशन में पूरे टाइम मटर ही छिलती थी। तो और मेरे से भी बोला कि आप मटर छिलवाओ घर पे। तो मैं भी उसको लेके मटर छीलो भाई, मटर छीलो, ठीक है। अच्छा, उसको मटर छीलना आ गया, ऐसा नहीं है। अब उसको उसके सर पे काम, जिसे कहते हैं ना, मर दिया, तो उसे काम करना है भैया, चलो करो, करके अपना अलग हटो है, बिना किसी उसके। लेकिन अभी प्रियंका मैम ने भी मेरे से ये काम बताया। कैसे बताया देखिए, कितना बढ़िया। पार्थ मैगी बनाता है, तो मैम ने बताया
कि ऐसा जब मैगी वो बनाने लग गया तो मैम ने बोला कि अभी हम क्या कर सकते हैं ना, इसमें कुछ कुछ चीजें डाल सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, कि 2-3 मटर ले लिया ना और छील के उसमें डाल दिया तो कितना बढ़िया हो गया। अब वो उसने 2-3 मटर लिया और उसने पार्ट मैंने भी छीला, मैंने कहा ले पार्ट तू भी छील ले, जल्दी से डालते हैं इसमें, मटर भी डालेंगे। 2 मैंने छीले, 2 पार्ट ने छीले और छील के डाल दिया। अभी मटर भी छिल गई, उसका पर्पस भी सॉल्व हो गया और वो हैप्पी भी है। अभी उसको वो हो गया 1 घंटे, मतलब अब ये सोचिए कि कितना बढ़िया थेरेपिस्ट का रोल था यहाँ, और पेरेंट्स ने उनके सपोर्ट के साथ कितना बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो मटर का हमने खा के भी देख लिया कि भाई मटर छील के डाला था तो ये खाया। अब वो छीलते ही जा रहा है, वहां थेरेपी सेंटर में भी छील के ही आया है, घर में भी मैं उसे मतलब कुछ और कितना मतलब बहुत। तो मैं यही कहूंगी कि ये एक थेरेपिस्ट का रोल है, बेस्ट थेरेपिस्ट का रोल, और ये पेरेंट जो सीख रहा है वो अपने बच्चे को दे रहा है। तो जी अर्पणा जी, आप कुछ ऐड? यस यस जो मतलब पहले जैसे मैं अभी जैसे फिजिकल सेंटर पे बिफोर द वर्चुअल सेशन मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी, तो वो 40 मिनट्स का सेशन होता था। वहां पे जैसे पेग बोर्ड से खिलाए या फिर जिस तरीके से वो क्या बोलते थे, आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ये प्लीज जस्ट नोट दिस सेंटेंस, आप देखो मैं कैसे बच्चे के साथ एक्टिविटी करा रही हूँ, एक्टिविटी करवा रही हूँ, ओके। एंड देन मैं देखती थी, अच्छा हाँ व्हाट इज दिस, बच्चा नहीं बोल रहा है 4 बार व्हाट इज दिस, फिर उनका वॉइस थोड़ा लाउड होता है व्हाट इज दिस, इस तरीके से एक्टिविटी हो रहा है या फिर पॉइंट करवा रहे हैं। देन पेगबोर्ड से कुछ एक्टिविटी कराया, एवरीथिंग। बट यहाँ पे जो रहता है वो एक थेरेपिस्ट के माइंड सेट से जो एक्टिविटीज उनको करानी होती है, एक्टिविटीज करानी होती है, वो चीज कराते हैं और पेरेंट्स को बोलते हैं आप ये सेम चीज घर में 2 से 3 बार कराओ, जस्ट फॉलो द मिलिट्री का जो रहता है ना, मिलिट्री प्रोफाइल, एकदम ये 3-4 एक्टिविटीज करानी है। एज अ पेरेंट मैंने क्या किया, मैंने सेम एक्टिविटी लिस्ट अमेजोन फर्स्ट क्राई से बाय किया और मेरा पूरा कबर्ड भरा, और मैं भी वैसे ही पूछ के व्हाट इज दिस, और नहीं बोल रहा है तो तुम और वॉइस रेज किया व्हाट इज दिस, उसका ये करके वहां पे जो होता है बॉन्ड फिनिश हो जाता है। मीन्स बच्चा मुझे देख नहीं रहा, वो बाइटिंग करेगा, हेड बैंग करता था, मुझे जबरदस्ती क्यों बैठा रहा है, फिर एट द एंड आई वाज डिससेटिस्फाइड, अरे यार ये, और मैं टेंशन में, फिर पूरा 2 बार कराया, उसने बिहेवियर शो किया, फिर देन आई वाज इन अ टेंशन, अरे ये तो कुछ नहीं करता, ये तो हेड बैंगिंग कर, अभी मैं क्या करूं। फिर मैं जब नेक्स्ट डे गई तो फिर वही चीज रिपीट होता था। सो वो अगर, या फिर वो वहां पे पजल्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेम चीज करती हूँ तो मैं क्या कर रही थी, कॉपी कर रही थी। बट यहाँ पे आफ्टर द वर्चुअल सेशन मतलब क्या मुझे एज अ पेरेंट सीखने को मिला, कीप योर चाइल्ड फर्स्ट प्लेस। एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं होती, चाइल्ड के साथ क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे प्ले करना है, और ये कुछ एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। अगर जैसे मैम ने बोला उसको मटर छीलना है तो आप उसको मैगी में डला दो, मेरे बच्चे को पानी से बहुत है तो उसको जूस कैसे बना सकते जिसमें उसको भी इंटरेस्ट हो, वो मुझे देखे, हम लोग दोनों मिलकर खेले, एंजॉय करें। सो एज अ थेरेपिस्ट जो वहां पे वो लोग बताया, और एज अ पेरेंट जो मैंने सीखा वो, एक 1 मिनट, माय चाइल्ड हैज कम, से हाय हाय। So this is a bonding, मतलब now if he'll get up he will see Hi. hi, yeah. So and the second thing is what जैसे ऐसा कुछ नहीं कि थ्रू द एक्टिविटी या थ्रू यही आप सिखा सकते हो कुछ एसोसिएशन। जो एज अ पेरेंट जो मैंने क्या सीखा है मैम, कि घर में इतनी सारी चीजें हैं, अगर डे टू डे हम जैसे थ्रू द खेल अगर हम उसको बताते जाए, अच्छा रिमोट दादी के बेडरूम में है, तो यहाँ पे क्या है ना, बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, चीजों को एसोसिएट कर रहा है। तो हम पर्टिकुलर बैठा के नहीं करते हैं, हम ऐसा खेल खेल में, अच्छा ये पिलो तो पापा का मतलब बेडरूम का है जहाँ अनवेस होता है, ये मतलब उसको धीरे धीरे क्या हुआ मैम कि उसको खुद का घर के इन्वायरमेंट के बारे में उसको नॉलेज हो गई, खेलते खेलते किचन में क्या रहता है, रूम में क्या रहता है, तो उसको ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का जो एसोसिएशन है, कौन सी चीजें कहाँ है, ये मैंने बस प्ले मेथड में हम लोगों ने जैसे करके उसने सीखा है। अभी वो खुश, अगर आप उसको आज के डेट में बकेट दोगे तो वो जाके बाथरूम में रख देगा। तो ये कोई चीज एक्टिविटी से नहीं सिखाया है, ये बेसिकली हम लोग खेल खेल के
जो उसको बोलकर जो होता, उसने खुद से उसने वो डेवलप कर लिया अपना। जैसे अभी वो उठा है तो उसने देखा है कि मम्मा नहीं है तो किधर है, कि उसने आया, मुझे किस किया, देन ही वेंट। तो ये जो चीज है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि अभी वो ढूंढता है किधर है मम्मा। सो मैम यहाँ पे मैं बहुत एक चीज बोलना चाहूंगी, बिकॉज और भी पेरेंट्स है, चाइल्ड कम्स फर्स्ट। डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बैठ के पजल करवाना, ये कराना। जैसे सुमित सर के एक सेशन में मैंने देखा था, अगर बच्चे ने 2 पीस 3 पीस पजल बनाना सीख लिया, दैट्स इट, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। अब आप उसको घर में कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे चीजों को रूम में देना, पापा को टी शर्ट दे देना, दादी, या फिर एप्पल है, एप्पल फ्रिज में रख देना। तो जस्ट प्ले विथ हिम विद अ different play method, and definitely it will help the child to be better, ma'am. मतलब एसोसिएशन होना Yes. चाहिए। तो एक्टिविटीज वहाँ हम लोग सपोज पहल करवा रहे हैं, तो हम कैसे इसको एसोसिएट करें Yes, yes, एक्चुअल लाइफ, yes, yes, गाइडेंस भी मिल जाता है उससे। yes, yes. Yes, yes. Okay, we'll come to the last question. आपका कोई रैशनल मैसेज, टिप्स और सजेशंस है पेरेंट्स के लिए सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उनके? Yes, मैम। मैम प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, ओके, बट अगर सही गाइडेंस नहीं मिला तो वो प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे, एंड देन वो फिक्स, मतलब एक होता है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो 2 से 5 कब हो गया प्रॉब्लम। बट अगर हम राइट डायरेक्शन में काम करते विद द प्रॉपर गाइडेंस, ओके, विद यू नो कि आपके बच्चे में ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों को हम कैसे करें, आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो मैं वो धीरे धीरे डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। वर्चुअल सेशन जैसे है आज के डेट में, मतलब आपको एक गाइडेंस मिलता है, एक गोल मिलता है, गाइडेंस मिलता है, और हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। हमें पता है कि 2 महीने के बाद ये 3-4 चीजें पे हम बच्चे पे काम कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्लो में काम होता है, हम काम करते हैं और फिर असेसमेंट होता है, फिर नहीं हो पाता देन विल मेक अ डिफरेंट प्लान एंड एवरीथिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज होता है मैम, जैसे आपको किसी भी टाइम के लिए बच्चे के साथ बैठकर कुछ करना नहीं है। मतलब अगर आप कुकिंग कर रहे हो, बच्चा आपके पास आया, तो जस्ट गिव द फीडबैक, मतलब जस्ट आप उससे बातें करो। अरे आ गया, देखो मम्मा क्या कुकिंग कर रही है, अरे इसमें क्या डाला है, अच्छा अनवेज सॉल्ट डाल दो। तो आप कुछ भी कर रहे हो या फिर पापा के पास गया, तो इस तरीके से एक जस्ट मेक अ प्लान कि अगर बच्चा किसी को भी रीच कर रहा है तो वॉट एवर ही और दैट पर्सन इज डूइंग, जस्ट ब्रीफ हिम, अपडेट देते रहो, फीडबैक्स देते रहो, जितना इनपुट्स। मैम ये चीजें नॉर्मली मुझे नहीं पता था पहले। आफ्टर द वर्चुअल सेशन प्रियंका मैम ने बोला अब बाहर हो, मैंने आई जस्ट गिव वन एग्जांपल, मैंने प्रियंका मैम को बोला कि मैम ये अगर मैं एरोप्लेन का पिक्चर दिखाऊं और उसको बोलूं सी एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, तो ये चलेगा क्या? मैंने आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मैम ने मुझे क्या एग्जांपल दिया कि नो, आप फ्लैश कार्ड ये सब मत करो, बिकॉज वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। आप उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेके जाओ और वहां पे कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो आप उसको बोलो लुक लुक सी एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, एरोप्लेन का आवाज या फिर जो भी है। तो आप जितना उसको नेचुरल, या आप इंटरनल घर के अंदर हो या बाहर हो, जितना ज्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप दोगे, बच्चा ग्रास्प करते जाता है धीरे 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 धीरे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना होल डे आपको उसके साथ खेलना है, आप अपना काम कीजिए, बच्चा आपके पास आता है या किसी को भी रीच करता है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको मतलब आप उसको बताओ कि आप क्या कर रहे हो, ही शुड अंडरस्टैंड, मतलब धीरे धीरे उसको भी अंडरस्टैंडिंग आएगी, एंड एक बॉन्ड भी क्रिएट होता है मैम। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, love your child, love your child, love your child, and play 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 play, this is the key role. Keep your child first. That is what I have learned and I have changed myself, and I as a mother I am confident. आप believe नहीं करोगे, सेकंड रिव्यू में मैंने सर को बोला कि अब मैं आपसे नहीं पूछती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा क्या, because now I am confident that we are working in the right direction, so definitely it will happen. Yeah, thank you ma'am. Great. I'll come to स्वर्णिमा जी, आप शेयर करना चाहेंगे पेरेंट्स के साथ कुछ मैसेज, टिप्स, सजेशन, आपको क्या लगता है?
मैम मैंने यही सीखा है सर से, सुमित सर से, कि हमें ना अपनी एक्सपेक्टेशन के चलते कहीं ना कहीं अपने बच्चों का बचपन नहीं छीनना है। और वही है ना कि हम उसकी जो ओरिजिनल एज है कि हाँ अरे ये तो 11 साल का हो गया, अभी तक क्यों झूला झूल रहा है इतना। मैं ये सोचती थी कि मेरे मेरे भाई का भी बेटा है, वो इससे कुछ छोटा है 3 महीने, वो तो नहीं इतना झूलता, ये अभी तक मैं नहीं अभी से झूलने दे रही है क्यों। लेकिन नहीं, अभी तो वो उतना नहीं, अभी तो वो 3 साढ़े 3 साल का है, सर ने मुझे जैसा बताया। तो वो तो झूलेगा ही, 3 साल का बच्चा तो झूलेगा ही। हमें उसको देनी, उसकी जिंदगी उसको देनी है, नहीं छीननी है। और फिर देखिए वो आगे कैसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब हम भी देखते रह जाते कि अरे अब तो पार्थ ये करने लगा, अब तो पार्थ वो करने लगा। तो हम लोग बहुत हैप्पी हैं, उसके पापा बहुत हैप्पी हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों को उनके हिसाब से जीने दो, और हम जो है उन्हीं के हिसाब से चलते रहे तो बहुत बढ़िया है। बस यही। ओके, Okay, थैंक यू। thank you so much. I'll come with the same question to Suman ji. सुमन जी, आप क्या मैसेज, सजेशंस या कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो पेरेंट्स हैं हमारे? काफी दोनों पेरेंट ने बहुत अच्छा कवर किया है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक आई वाज बोर्न इंटेलिजेंट, एजुकेशन ruined me. It same goes with the kids. बच्चे इंटेलिजेंट थे लेकिन हम लोग थेरेपी है, ये पेरेंट एक्सपेक्टेशन है, ये है वो है, सब डाल के बच्चे को मतलब ऑटिज्म तो था ही, उसका और लाइफ बर्बाद कर दिया। तो लेट जस्ट लूजन अप लिटिल बिट, थोड़ा बच्चे को बच्चा रहने दो। और वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि सी हिज एक्चुअल एज और हिज क्रॉनिकल एज इज वेरी डिफरेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना और बच्चे को एम्ब्रेस करना, वॉट एवर द सिचुएशन है। अगर आपने एम्ब्रेस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो बाकी सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एंड देन फाइंडिंग द राइट मेथड टू टैकल द सिचुएशन। जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया सब कुछ, लेकिन हमको फिर भी पता नहीं था कि करना क्या है। पर हम यहाँ पे आए, ऑनलाइन सेशन देखा, इन लोगों ने बताया, सौमिल सर ने बताया कि थेरेपी है वो अलग चीज है, लेकिन प्ले करना, तो उनको खुद को अपने स्किन में टू मेक कंफर्टेबल किड इन हिज ओन स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स जस्ट फाइंड द राइट सोर्सेज कि कहाँ से हम लोग अपने बच्चे का लाइफ इजी बना सकते हैं। वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर देम, ऑलरेडी सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है उन लोग के लिए, और थेरेपी दे के और सब कुछ दे के कॉम्प्लिकेट नहीं करें। लेट्स मेक थिंग्स इजी फॉर देम एंड फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग को साथ में रहना है। नोबडी इज गोइंग टू टेक हिम अवे और नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई कि चलो ये अब हमारे साथ रहेगा। नो थेरेपिस्ट, नोबडी विल डू दैट। इट्स लाइक हम लोग को एज अ फैमिली साथ में रहना है। वी जस्ट फाइंड अ वेज टू मेक आवर लाइफ इजी, दैट्स इट। हर्षाली मैम, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगी पेरेंट्स को। हेलो। श्योर, प्लीज गो अहेड। डू नॉट गूगल टू मेनी इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो मैंने गलती की है, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी। बिकॉज एज अ पेरेंट व्हाट आई वाज डूइंग इट, कुछ भी हुआ तो मैं गूगल में जाती थी, अरे ये व्हाट आर दिस ऑल दोस थिंग्स, एंड फिर वहां से निगेटिविटी माइंड में स्टार्ट हो जाती है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज आप गूगल में ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च मत करो, बिकॉज इट मे क्रिएट निगेटिविटी इन योर माइंड, स्ट्रेस। और आप में अगर स्ट्रेस आएगा तो डेफिनेटली बच्चे में स्ट्रेस पास ऑन हो जाता है, बिकॉज दे कैन फील दैट स्ट्रेस। तो प्लीज कुछ भी अगर क्वेश्चंस रहता है तो आप अपने थेरेपिस्ट से पूछिए। हैव अ फेथ, कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोसेस। चेक विद योर थेरेपिस्ट कि क्या ये सही है या क्या नहीं, एंड दे विल गाइड यू। बिकॉज आई डू दैट, मैं पूछती हूँ अगर मैंने कहीं से भी, मुझे किसी दूसरे पेरेंट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, बिकॉज वी टॉक, हम बात करते हैं, हम नेट पे देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, देयर आर सो मेनी सोर्सेज टुडे अवेलेबल, ओके। एंड हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली इट कैन हार्म ऑल्सो in the process. So have faith, confidence in your therapist in the process. कुछ भी रहता है तो आप प्लीज डिस्कस करो। आई डू दैट, जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता होती है तो मैं प्रियंका मैम को बोलती हूँ, मैम ये ऐसे कर सकते हैं क्या, ये ऐसे कर सकते हैं क्या, एंड देन शी गाइड मी कि नहीं इसको ऐसे करो, मतलब क्या राइट वे है, क्या राइट अप्रोच है। सो योर थेरेपिस्ट विल गाइड यू। सो डू नॉट गो थ्रू द गूगल, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत निगेटिविटी स्प्रेड होती है मैम उससे।
यस यस ट्रू। आगे हम लोग एक चैट बॉक्स में क्वेश्चंस है, आई थिंक उसका आंसर उन्हें मिल गया होगा कि हाउ प्रैक्टिकली डेवलपमेंट हैपेंस विदाउट थेरेपिस्ट टचिंग चाइल्ड। एनी अदर क्वेश्चंस पेरेंट्स हैज कैन पोस्ट इन अ चैट बॉक्स और अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पेरेंट्स? ओके आई गेस सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सबके क्वेश्चंस के आंसर शायद उन्हें मिल गए हैं। आई मीन बहुत अच्छा लगा कि कैसे ऑनलाइन थेरेपीज और प्रॉपर वे ऑफ थेरेपीज जब तक हम लोग जाते नहीं हैं उससे, तब कैसे अप्रोच और इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है, ये हम पता कर सकते हैं उसमें। तो मैं भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट, एज आई एम ऑल्सो टेकिंग सम थेरेपीज, ऑनलाइन थेरेपीज फ्रॉम, तो मैं भी शेयर करना चाहूंगी कि मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला का तो हमने जो जैसे हमने कन्वेंशनल कुछ तरीके से जो थेरेपीज लिए थे उसकी वजह से हमने जो ट्रेन कर दिया था, लेकिन मुझे पता चला कि उस जो ट्रेनिंग है वो उसके हायर फंक्शंस में नहीं काम आएगी। जब वो अभी अभी 9 साल का हो गया है तो काफी चीजें मुझे भी पता चल रही है कि ऑनलाइन जब बताते हैं कि उसको कैसे हायर फंक्शंस को डेवलप करने के लिए कैसे काम करना है, कैसे प्ले में वे में करना है, और जैसे जनरली लाइफ में जो चल रहा है रूटीन में, जैसे आप सब ने बोला उस कैसे उसको इन्वॉल्व करना है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। जस्ट एक थोड़े से टाइम के लिए हम लोग जब एक्चुअली पेरेंट्स का होता है कि 1 घंटा ले गया और थेरेपी खत्म, हमारे चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा। जनरली ये ट्रेंड चलता आ रहा है पहले से, बट ऐसा नहीं है। आई मीन हमें पूरा उनके साथ जो बॉन्डिंग क्रिएट करना है, और वो है जो वो पूरा कंटिन्यूस 24 आवर्स हम उनके साथ रहते हैं, तो हमको पूरा 24 आवर्स उसमें हमको देना पड़ता है। सो वो कैसे करना है, हम ये कोविड के पहले हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। जो पहले सिर्फ जल्दी होती है, ये थेरेपी ले जाना है, वो थेरेपी ले जाना है, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों के साथ हमें टाइम भी स्पेंड करना है। तो इस कोविड टाइम में हमें ये पता चला है कि हमको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और ऑनलाइन थेरेपी से हमें ये पता चला हमको कैसे करना है, क्वालिटी टाइम को कैसे यूज करना है। थेरेपी थेरेपी नहीं करना है, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ कैसे बनाना है। दैट्स व्हाट आई दैट इज माय पर्सनल फीलिंग्स फॉर ऑल दिस। सो मैं इसमें कहना चाहूंगी कि मैं थेरेपीज ले रही हूँ मेरे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए भी, डॉक्टर सुमित शिंदे CRC से, और मैं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ उनके उसमें। सो जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मैं इंडिविजुअली शायद नहीं आंसर कर पाऊंगी, तो ये सेशंस के थ्रू, मैं इस सेशन के थ्रू करना चाहूंगी कि आप प्लीज ऑनलाइन थेरेपीज को थोड़ा माइंड ब्रॉडन करें, ऑनलाइन थेरेपीज को के लिए जाइए, आप कंसल्टेशन लीजिए। जरूरी नहीं है कि फिजिकली हमें बच्चों को देखना, मतलब थेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा। जो एक्सपर्ट थेरेपिस्ट है वो आपको बता के, या सिंपली 1 मिनट के लिए भी बच्चों को देख लेना, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इसमें बच्चों को क्या क्या इश्यूज हैं। उनसे 5 मिनट में इंटरेक्ट कर लेते हैं तो भी उनको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। तो दैट इज माय फीलिंग अबाउट इट। एनीवन, Arpana, Swarnima, Suman ji, anything you want to add in this, you can please go ahead before stopping the session. मैम मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे सौमिल सर ने मेरे से बोला था एक बार कि आपको एक्सरसाइज करानी है, लेकिन उसका मजा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज अगर मजा नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज मत कराइए। तो फर्स्ट सबसे पहले है इंजॉय बच्चे का, उसका मजा, तो वो हमको बना के रखना है। तो मैं यही कहना चाहूँ। ओके, थैंक यू। पीयूष जी, आप पापा कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पीयूष जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस मैम, यस मैम। यस। एक तो जो इमोशंस है ना हमारा बच्चे के साथ, वो 100% उसके साथ रखना है। हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना। मीन्स
इमोशन बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। अगर वो रो रहा है या उसको दर्द हो रहा है, इफ यू आर फीलिंग समथिंग लव, तो हम भी एक्सप्रेस करें उसके साथ। वी शुड एक्सप्रेस आवर थॉट्स। तो उसमें उसका अच्छा डेवलपमेंट होता है, वो समझता है इस चीज को, ही इज अंडरस्टैंडिंग कि यस पापा को चोट लग गई है या पापा को कुछ चाहिए। अभी मैं पूरा ड्यूरिंग सेशन मैं इसको पूरा इसको छोड़ दिया था, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। ये अपने से ही सारा कुछ जो जो इसको चाहिए था वो झूला झूल के वो अपना सेटिस्फेक्शन अवेल करके वो वापिस कार में बैठ गया और चिप्स का पैकेट मांगा, मैंने दिया और घर आ गया। अभी मैं राइट नाउ मैं आई एम एट होम। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वर्चुअल सेशंस। Great, sir. Thank you so And much. ma'am, one more thing I just want to add. वर्चुअल सेशन ऐसा कुछ प्लान नहीं होता कि आज आपको यही चीज प्ले करना है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर चाइल्ड, उसको क्या करनी है। जब आपको समझ में आता है कि अच्छा आज उसको ये करना है या कुकिंग का कुछ करना है या फिर उसको आज जंपिंग ही करना है, तो जंपिंग हम किस तरीके से करा सकते हैं जहाँ पे बच्चा उस चीज को एंजॉय करे। और प्लीज बिलीव मी, आप जैसे जैसे आप देखोगे कि आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है, आपको इतनी खुशी मिलती है एज अ पेरेंट कि अरे मतलब यू फील गुड। और वो कैसे 40-45 मिनट्स हो जाता पता ही नहीं चलता है, और आप खुद चाहोगे कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट सेशन जल्दी है। मतलब ये इतना अच्छा वो फील होता है अपने बच्चे को हंसता हुआ देखना, एंजॉय करते हुए देखना। एज अ पेरेंट ऑल्सो वी फील हैप्पी मैम। ग्रेट। ओके देन सुमन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पर हैं। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सी लाइफ हमारा जो ठीक है, हमारा स्पेशल चाइल्ड है, तो हमारा लाइफ सिर्फ 1 घंटे के सेशन में नहीं है। हमारा लाइफ बाकी के जो 24 आवर्स हैं, 23 आवर्स हैं, उसमें ही है, 1 घंटे में नहीं है। So whatever we learn and apply is more important. The 23 hours are more important. तो just don't go by कि 1 घंटे का सेशन कर लिया बस। It's not. It's a lifelong learning, even for normal kids also. I have a daughter, she is typically neurotypical. तो उसके साथ भी ऐसा नहीं कि भाई एक स्कूल का करवा दिया या कुछ 1 घंटा करवा दिया, बाकी पूरा दिन छोड़ दिया तो चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We have to continuously work on kids and for us, upon us also. खुद के ऊपर भी काम करना पड़ता है, बच्चों को भी करना पड़ता है। तो it's a round the clock job of a mother or father. तो we have to do, and with ये online session से हमको ये मिला है कि we are getting empowered. Parents are getting empowered to handle situation and learn and make new progress for the kids. हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं। हमेशा जो टेंशन में बैठे रहते कि हम नहीं कर पा रहे, हमें ज्यादा टाइम पता नहीं चलता कि बहुत हेल्पलेस लगता क्या रहे हैं। मतलब थेरेपी रूम में हो क्या रहा है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, वो मार तो नहीं रहे हैं बच्चे को कुछ फिजिकल अब्यूज तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आई यूज्ड टू गेट वेरी वरीड कि व्हाट्स गोइंग बिहाइंड दैट शट डोर्स। एंड ऐसा नहीं कि वो शट डोर्स के बाद भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं, नथिंग, इट थिंग्स हैव बिकम वर्स ओनली। अभी जो इम्प्रूवमेंट सारे थेरेपिस्ट के इसमें अब्यूज नहीं होता, लेकिन हम 1-2 ही एग्जाम्पल अगर हम सुन भी ले तो भी वो मन में आ जाता है और वो टेंशन में आ जाते हैं कि अरे क्या होगा। अच्छा, बाकी इसमें ये भी पता नहीं चलता कि गोल्स कैसे सेट हुए हैं। करेक्ट, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, थेरेपिस्ट अपना गोल सेट कर लेते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि हम घर जाके उस पे क्या काम करना है। करेक्ट, राइट। वही मैं बोल रही हूँ कि सी दैट हमारी आवर लाइफ इज नॉट जस्ट 1 hour, आवर लाइफ इज रेस्ट ऑफ द 23 hours। और उसको कैसे करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। और वो एक रूम में कोई टेंट्रम होने वाला नहीं है, रूम में कुछ लाइफ वो होने वाला नहीं। लाइफ एक्चुअली घर पे आके और बाहर जाके अपनी जो नॉर्मल रूटीन करते हैं उसमें होता है। वो हाउ टू हैंडल स्ट्रक्चर होता है, तो वहां शायद वो कर भी लेते हैं। लेकिन जो जनरलाइजेशन है उस एक्टिविटीज का, जो जब तक हम घर में नहीं करवाते उनसे, आई गेस तब तक हम उसको थेरेपी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। नहीं है, सीरियसली कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स को ये जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा थेरेपिस्ट के साथ कि हम जनरलाइज कैसे करें,
तब तक वो थेरेपीज कुछ काम नहीं है, काम की नहीं है। इसलिए सालों साल जैसे हम लोग थेरेपीज लेके जाते हैं, जैसे मैंने भी पहले 5-6 साल लेके गई बच्चों को थेरेपी के लिए, अर्ली इंटरवेंशन के नाम पे लेके गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब एक 6 साल तक मेरे बेटा उसी लेवल पे था। सो जब तक हम इंटरैक्शन या खेलते नहीं है सिंपली बच्चों के साथ, तब तक हमें कैसे खेलना ये भी नहीं पता होता। नहीं पता है, एग्जैक्टली। कैसे खेलना है, हम रीच आउट Because- करना चाहते हैं बच्चे के साथ, लेकिन क्या करें, कैसे करें, वही हेल्पलेस हो जाते हैं, वहीं पे हेल्पलेस हो जाते हैं। तो वो एम्पावरमेंट अब हमारे हाथ में आ गई है ना, तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई अब हम लोग टैकल कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं, बच्चों को अपने देख सकते हैं। वो एम्पावरमेंट करना बहुत बहुत बड़ी चीज बहुत है। जरूरी है। हर चीज अपने हाथ में ले लिया। अभी हम लोग रोज गोल्स बना रहे हैं, इवन हम गोल सेट करना चाहते हैं कि नहीं सर अभी मुझे लग रहा है कि ये जरूरी है, ये डालिए, तो दैट आल्सो इज रिस्पेक्टेड एंड दैट आल्सो इज वर्कड अपॉन। तो दैट मेक्स मी हैप्पी। हाँ, बेसिकली इंटरैक्शन विद थेरेपिस्ट। मेरा ओपिनियन भी मैटर हो रहा है, मेरा भी, हमारा जो लाइफ चल रहा है वो मैटर, इट गिव्स मी पावर, इट एम्पावर्स मी। तो ये है, ये मतलब सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी चीज है ऑनलाइन। बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो स्वर्णिमा जी कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? हेलो वैशाली मैम, मैं मेरा यही कह रही हूँ हेलो कि एक्चुअल थेरेपी यही है एक्चुअल थेरेपी। वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, मनी वेस्टिंग है और कुछ भी नहीं है। बस अपने आप को एक तसल्ली, एक्चुअल ये हो रहा है हमारे संग, बच्चे के संग जो होना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए। माँ बाप को डायरेक्ट ही आप वो इंगेज होने चाहिए फैमिली के साथ, सब कुछ, मतलब यही है। और वो है ही नहीं, मुझे तो यही लगता है यही है। तो वर्चुअल थेरेपी ही है जो है। एकता जी कुछ कहना चाहेंगी, पूछना चाहेंगी? हेलो मैम, मैंने सर का सेशन अभी अटेंड नहीं किया है। 16 इयर्स का ऑटिस्टिक चाइल्ड है मेरा, तो वो उसका बस स्पीच का थोड़ा मेरे को रिपीटेड स्पीच आती है, बाकी उसका सब अभी NOS का 10th का दे रहा है एग्जाम, और क्रिएटिव है काफी, बहुत अच्छे से अपना लाइफ स्किल्स करता है। मैम आप मुझे थोड़ा सा स्पीच के लिए थोड़ा गाइडेंस देंगे, रिपीटेड स्पीच को? हम लोग पेरेंट्स है, ये तो आपको अगर प्रोफेशनल कुछ हेल्प चाहिए तो आप प्लीज, आई मीन इट्स अ बेटर वे कि आप प्रोफेशनल से पूछे, बिकॉज हम लोग हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ओके शूज की हम आपको किसी मतलब टेक्निकल सपोर्ट। अच्छा, यस मैम, मैं सर से फिर बात करूंगी सेशन के लिए। यस आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। स्पीच का सेशन देते हैं ना सर आप? हम लोग बात कर लेंगे, मैं आपको नंबर भेज देती हूँ, हम लोग उस पे पर्सनल क्वेश्चंस पे हम लोग कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू ऑल पेरेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मेरा तो मैम अभी जर्नी हो गया, मैं 16 साल का कर लिया बेटे को, बस अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन। हाँ जी, अच्छा लग रहा है सुनने में सबको। जो मैम ने, एकता मैम ने क्वेश्चन किया है, कहीं ना कहीं पहले हम लोग भी इसी टाइप के क्वेश्चन करते थे, लेकिन जब सर से शुरू होगा ना तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब हमें सोच के मतलब लगता है कि क्या वो क्या करते थे, क्या सोचते थे, अभी वो अपने आप ही सब बंद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो शुरू होने दीजिए मैम को। कि आप पर्टिकुलर एक किसी के पीछे मत पड़िए, जब होगी तब पता चल ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, वो हम किसी एक चीज में नहीं भागने। जैसे हम नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे के संग ये नहीं कह रहे ये बिल्कुल उसी तरह होगा सब कुछ। तो मैम को सुन के हमें अपना पहले वाला पुराना याद आ रहा है। याद आ गया। यस थैंक यू थैंक यू सो मच सुमन जी, पीयूष जी, स्वर्णिमा जी, अर्पणा जी, फॉर हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आई एम श्योर कि पेरेंट्स को भी काफी हेल्प हुई होगी इसमें, कि कैसे मतलब सारे डाउट्स हम उनके क्लियर हो गए होंगे इस सेशंस के थ्रू। सो मैं थैंक यू करना चाहूंगी अटेंड करने के लिए, और थैंक यू एवरीवन। Thank you. Have a great day. Have a great weekend. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, parents. Thank you all. Bye. Bye. Bye.